Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you guys are new to this channel, my name is Abantika, and on this channel we talk about lifestyle manifestation and some important tips and tricks regarding your class 10 ICSE boards. So today's topic is very special because a few days back I did a community post asking you guys to fill in all the doubts you're having regarding your boards or life in general. So I got a few questions, and this is a part 1 of the video. If you guys want to add up some more queries and posting it on the community page, and if you guys want any other further questions to be answered, then go to the community post, check that post out, and comment down below your questions, and in the next question answer session I'll be answering that. So without wasting your time, let's get started with today's video. So these are the questions that I got. What is the formula for presence of mind in exam? So why presence of mind is very important during exam? Everybody knows that, but having a short term, focus span बहुत ज़्यादा problem हो जाती है, and to cope up with this you need to have a lot of practice in sitting time bound situations like before your exam. Take your sample papers, उसमें जो time लिखा हुआ है like 2 hours or 3 hours, take the time, sit in that time, give the exam in a very closed environment. प्रिपेयर योर माइंड इन सच अ वे कि एग्जाम देते समय तुम्हारे माइंड को ऐसा ना लगे कि इट्स अ वेरी न्यू थिंग. अपने माइंड को ना प्रैक्टिस करते रहो दैट दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज हाउ इट्स गोना बी. ऐसा करने से योर माइंड विल ऑटोमेटिकली बी इन अ वेरी फैमिलियर जोन इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो. उसको ऐसा नहीं लगेगा इट्स इट्स वेरी न्यू इसलिए तुम भूल जा रहे हो चीजें. नहीं, ऐसा नहीं होगा. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर इट गेट्स बेटर. ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए प्लीज कट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस. लाइक लास्ट 1 or 2 months के लिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को काट लो. इफ यू वांट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, जो भी जहाँ पे भी हो, डीएक्टिवेटेड फॉर अ फ्यू मंथ्स, बिकॉज इट्स जस्ट 1 or 2 months की बात है. उसके बाद फिर जितना मर्जी स्क्रॉल करना, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें. ठीक है? So for 1 or 2 months, please try to deactivate these things. या फिर if you can't deactivate these things, if you want to be on these things, एक time limit बना के रखो. Like एक दिन में only 30 minutes I'll scroll, that too after completing these sessions. ये सारे chapters पढ़ने के बाद ही मैं टच करूंगा अपने Instagram को या फिर अपने Facebook को or whatever. So that will be for the presence of mind thing. Tips for ICSE Bengali. Okay. So if कोई भी अगर vernacular language ले लो, even if it's Hindi or it's Bengali, mine was Bengali, you have, I guess, stories and poems. And recently, I think you have Chadar Pahar and you have the stories. मेरा भी सेम था. इफ यू हैव प्रॉब्लम इन स्पेलिंग्स, देन एक चैप्टर लो, उसमें से जो भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है, अंडरलाइन देम. प्लीज प्रैक्टिस दो स्पेलिंग रेगुलरली, एंड एवरी चैप्टर के स्पेलिंग्स कर लो. आई हैड अ गुड हियरिंग पार्ट. लाइक इफ एनीबडी मुझे वो स्टोरी अगर पढ़ के सुनाता था, आई वुड रिमेंबर इट मोर. मुझे वैसे करके आई यूज टू रिमेंबर थिंग्स अ लॉट बाई लिसनिंग. So I asked my mom to read me stories, and before exams also she read me stories, and I used to listen to it, and फिर मैं लिखती थी. And always use short and crisp sentences. Also, जो भी sentence के spelling तुम्हें अच्छी तरीके से याद है, don't use complicated sentences, because अगर complicated sentences use करोगे and if थोड़े से भी mistakes हो जाएंगे, your marks will get deducted. ठीक है? एंड ग्रामर पोर्शन में यू आर गेटिंग एमसीक्यूज. डूड, व्हाट एल्स डू यू वांट? हम लोगों को अनसीन ग्रामर मिलता था, वो भी एमसीक्यूज में नहीं, हम लोगों को लिखना पड़ता था. सो दैट्स मोर डिफिकल्ट, आई गेस. एंड एसेज एंड स्टोरीज, तुम्हारी बात है. छोटे छोटे लाइंस लिखना, ऐसे लाइंस लिखना जो तुम श्योर हो जिनके बारे में. डोंट राइट ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. राइट वेरी सिंपल essays and very short sentences वाला ऐसे. डोंट राइट लेंदी थिंग्स, क्योंकि डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि अगर मैं लेंदी लिखूंगी और इफ आई यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, देन मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स योर सेकंड लैंग्वेज. वैसे ही तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, ट्राई टू कीप इट क्रिस्प, एंड डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. ठीक है?
नेक्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व केमिस्ट्री के इक्वेशंस. केमिस्ट्री के इक्वेशंस में इफ यू वांट टू ग्रास्प द इक्वेशंस, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इक्वेशंस हो गए. टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन द इक्वेशंस, रोज उनको प्रैक्टिस करो. लाइक आस्क समवन, लाइक तुम्हारे फैमिली में, इफ योर मॉम इज अवेलेबल, टेल हर, गिव हर द बुक, टेल हर कि मुझे लिखने दो, लाइक रैंडमली मुझको इक्वेशंस लिखने दो. ऊपर ऊपर में लिखा हुआ होता है ना कि दिस इज दिस एक्सपेरिमेंट, लाइक ऑसवोल्ड प्रोसेस हो गया, Haber's process हो गया. Ask her to tell you these processes names and you write the equations. या फिर if you are learning organic chemistry, then the laboratory preparation of alkane, alkyne या फिर alkene, इनके organic processes हो गए. Then oxidation process. Oxidation process में कौन से, like alkane से formic acid कैसे बनता है, वो सारे जो conversions होते हैं, practice them, बार बार practice करो, because the more you practice, equations are also based on memory. These are memory based things. तो memory कैसे sharp होगा? The more you practice, the more easier it gets. So instead of complaining कि and I'm being very honest with you guys, like many of you, मैं जब last time पे I came online या फिर मेरे comment section में हो गया, many of you, you know, instead of focusing on your studies, you try to find shortcuts. Shortcuts नहीं मिलेंगे. लाइक मेनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि दीदी से 40% कैसे लाए. 40% कैसे लाओगे? अपने 10 years के क्वेश्चन पेपर्स अच्छी तरीके से पढ़ लो, 40% वैसे ही आ जाएंगे. देर इज नो शॉर्टकट इन स्टडी. इट्स अ वेरी हार्श थिंग आई एम गोइंग टू से टू यू. एंड तुम लोगों को लग सकता है कि दीदी इज वेरी एंग्री या फिर दीदी गुस्सा हो गई. इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एंग्री गाइस. तुम लोग अगर एफर्ट नहीं दोगे, तुम लोग अगर सब कुछ तुम्हें लाइक यू वांट अस टू फीड यू गाइस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. यू गाइस हैव टू पुट इन द एफर्ट. तुम लोगों को इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, तुम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रोज उस चीज को लेकर बैठना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू मेक योर माइंड कि मुझे अभी बैठना है. शाम के 5 बजे से 6 बजे तक आई विल स्टडी केमिस्ट्री, आई विल स्टडी ऑल द इक्वेशंस एंड एवरी डे 5 बजे से 6 बजे तक मैं केमिस्ट्री के इक्वेशंस ही करूंगा या फिर करूंगी. whatever whatever it is you are finding difficult, ऐसा एक माइंडसेट बना लो कि आज से एग्जाम टाइम तक जितना भी हो सके वही चीज तुम उसी टाइम पे रोज करोगे. ऐसे करने से वो चीज ना इजी हो जाएगी. एंड देर इज नो शॉर्टकट इन दीज थिंग्स. ठीक है, शॉर्टकट जो थे लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैंने तुम लोगों को बता दिया था लास्ट वीडियो में. मेनी ऑफ यू आफ्टर दैट, इवन आफ्टर दैट, तुम लोग आकर मुझे पूछते रहते हो कि दीदी कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वेटेज है, मैथ्स का कौन से चैप्टर मैं स्किप कर सकता हूँ. तुम लोग स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो. बट अगर स्किप करोगे, अगर एग्जाम में तुम देखोगे कि तुमने सपोज कंस्ट्रक्शन तुमने स्किप कर दिया, कंस्ट्रक्शन और एपीजीपी को मिलाकर एक क्वेश्चन आया जो लाइक कंस्ट्रक्शन को छोड़कर बाकी दो क्वेश्चंस बहुत इजी है कंपेयर टू दी अदर क्वेश्चन जो तुम्हें एग्जाम हॉल में मिला है. तो तुम क्या करना चाहोगे? तुम वो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन करना चाहोगे जो इजी लग रहा है तुम्हें, पर तुम उसमें भी फुल मार्क्स नहीं ला पाओगे. क्यों? क्योंकि तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं की. दैट्स द थिंग ना. इसी बात के लिए मैंने कहा है कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ में कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, बिकॉज ये चैप्टर्स रैंडम बेसिस पे तुम्हें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं. हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एक एक चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग. बट ये जो साइंस के सब्जेक्ट है उनमें मिक्स चैप्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं. सो बी अ बिट प्रैक्टिकल, राइट? कंस्ट्रक्शन या फिर लोकस, आई सॉ कमेंट सेइंग कि कंस्ट्रक्शन और लोकस के स्किप कर सकते हैं. नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते. क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन और लोकस बहुत ही इजी चैप्टर्स है, उन दोनों को मिलाकर और दूसरे जो चैप्टर्स होते हैं वो मिलाकर अगर तुम्हें एक इजी क्वेश्चन आ गया और तुम वो करना चाहोगे, फिर भी तुम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि तुमने कंस्ट्रक्शन स्किप कर दी. सो बी अ बिट प्रैक्टिकल गाइज. 10 में आ चुके हो तुम लोग अभी इस उम्र में हो कि तुम्हें लॉजिकल चीजें समझ में आ रही है. ठीक है, बी अ बिट प्रैक्टिकल.
हाउ टू स्टडी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। अच्छा, न्यूमेरिकल्स तुम लोगों का कैलोरीमेट्री में है, साउंड में है, लाइट में है। सो लाइट और जो साउंड में न्यूमेरिकल्स है, वो सारे नॉर्मल न्यूमेरिकल्स है। वॉट एवर द न्यूमेरिकल्स आर, वो सब फॉर्मूला बेस्ड है। सो यू कैन इजीली सॉल्व देम। फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देखो एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व देम। एंड जो कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री में चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो, देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल समझ में ना आए, लाइक जब पहली बार कर रहे हो, तब अगर समझ में ना आए, देन यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएंगे। एंड वो सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो, देखकर पहली बार सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें। एक बार सॉल्व किया, उसको एक दो दिन बाद फिर से पूरा चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करो, बट इस बार अकेले करने की कोशिश करो। देन तीसरी बार करो, चौथी बार करो, देखना अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे प्रैक्टिस। हाउ टू गेट रीड ऑफ डार्क सर्कल्स आफ्टर सो मच ऑफ स्टडी बाई फोन। पहली बात तो फोन से पढ़ाई मत करो, बिकॉज फोन तुम इस एंगल पे ऐसे अगर रखोगे, तुम्हारे आई साइट पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ फोन, यूज योर लैपटॉप और यूज योर पीसी। पीसी तो सबके पास होता है, अगर पीसी नहीं है तो लैपटॉप पे जाओ, लैपटॉप पे पढ़ो या फिर टैबलेट पे पढ़ो। डोंट यूज योर फोन, ठीक है। अगर फोन यूज भी करते हो, एक कैमरा स्टैंड लो, 15 सेंटीमीटर दूर रख के अपने फोन से, मतलब अपने आंखों से 15 सेंटीमीटर दूर रख के फिर पढ़ो, ठीक है। अपने पास तो बिल्कुल ही मत लाओ। देन डार्क सर्कल, डूड गाइस, तुम लोग क्लास 10 में हो। क्लास 10 के एग्जाम्स, इफ आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, क्लास 10 के एग्जाम्स इतना मैटर नहीं करता है। तुम लोग जितना तुम लोग इसके पीछे भाग रहे हो ना क्लास 12 के एग्जाम में, उतने उससे डबल भागना पड़ेगा। एंड फिर तो कॉलेज प्लेसमेंट्स वो सब तो दूर की बात है। सो अगर तुम लोग क्लास 10 में इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो सोचो क्लास 11 या फिर 12 में क्या हालत होगी तुम लोगों की। सो लाइफ को ना इतना सीरियसली मत लो। प्लीज डोंट टेक योर लाइफ सो सीरियसली। यू हैव अ लॉट ऑफ लाइफ लेफ्ट। इतना सीरियस हो रहे हो, रात रात भर मत जागो, प्लीज मत जागो, अच्छी तरीके से सो। बिकॉज ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आंसर किया था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर तुम लोग सारी रात लाइक ऑल नाइटर्स भी पुल ऑफ करोगे, तभी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन फॉग हो चुका है, इतना ज्यादा ऑल नाइटर्स टाना है। मैं आई एम 21, सून टू बी 22। मैंने आज तक एक भी रात, लाइक सारी रात मैंने जाकर पढ़ाई नहीं की। द मैक्सिमम आई वेंट वाज टिल 1 बजे, और तुम लोग अभी से ऑल नाइटर्स कर रहे हो। लाइक प्लीज गाइस, थोड़ा सा लाइक टेंशन रिलीज करो, थोड़ा सा चिल हो जाओ। एग्जाम्स है, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे स्कोर्स लाओगे, तुम सब लोग बहुत अच्छे स्कोर्स लाओगे, आई एम 100% श्योर ऑफ इट। अच्छी तरीके से सो, फोन दूर रखो, लाइक कीप इट एट द डिस्टेंस, वैसे रख पढ़ो। ट्राई टू रीड फ्रॉम योर बुक्स and sleep properly, stay hydrated, obviously drink loads and loads of water। देखो मेरे आंखों के अंदर भी गड्ढे पड़ गए। एंड ऑब्वियसली आई क्रीम मैं तो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं भी अभी तक यूज नहीं करती। सो stay hydrated, drink loads of water, fruit, and do a bit of exercise। Like I know, like when I was in class 10, मैं अपने जगह से नहीं हिलती थी, and after that I got diagnosed with PCOS। So it's very unhealthy for people to sit in one place throughout the day and study। So I am telling you from my experience। मैं तुम लोगों की दीदी हूँ, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। प्लीज एक जगह पे बैठकर पूरा दिन मत रहो, मूवमेंट करो, ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, हैव एटलीस्ट 8 to 9 hours ऑफ स्लीप। जो जो कहना है कहने दो, हैव अ गुड नाइट स्लीप, एंड that will be your getting rid of your eye circles। And we come to the last question, how to get a teacher like you। मैं कह दूं, मेरी तरह टीचर तुमको मिल सकता है, क्योंकि आई ट्यूटर लाइक मैं क्लास 9 और 10 को पढ़ाती हूँ।
And if you want online coaching from me, I'm available. मेरे Instagram पे DM कर दो. And I charge 499 rupees per month for one subject. So if you guys are interested to study from me personally, then DM कर दो. And also, let me clear about my study material. Like बहुत लोग बहुत confused है about the study material. So study material मैंने तुम लोगों को पूछा था if I should make a study material or not. And from the response I've got, I think I should make one. But yeah, I'll be charging that because I am a college student. So अभी तो मैं कुछ फ्री में नहीं दे सकती, but yeah, I'll try. Soon I'll bring up stuff जो मैं फ्री में दे सकती हूँ तुम लोगों को. एंड अगर तुम लोगों को सैम्पल पेपर्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं अपने हाथों से, लाइक देयर विल बी 5 सैम्पल पेपर्स पर सब्जेक्ट एंड पर सब्जेक्ट प्राइस विल बी 199. एंड इंग्लिश का सिर्फ पैकेज में लाइक टू study material you are getting, that will be 350 rupees for two, like English 1 and English 2, total of 10 sample papers. And also you'll be getting access to my Telegram group जहाँ पर I'll give updates regularly regarding ICSE and also the tips and tricks to give your exam. और वो भी पूरा private channel है, nobody is getting access to it. And that was about my sample papers and everything. And thank you so much. Like the community has grown, like 1600 people are following me right now. एंड आई लव यू गाइज. मैं तुम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इसीलिए ये चैनल आज मैं आई एम मूविंग फ्रॉम माई टॉपिक्स टू help you guys in your boats. And I am thrilled with all of you supporting me right now. And many of you have seen my Instagram page and many of you are concerned about my health. Well, right now अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती. Like today I have the doctor's appointment and everything. I hope it will not be something serious. और अगर कुछ हो भी जाए, then I'll still be posting. Don't worry about that. And all the best for your exams and pre-boards. I'll see you guys soon.